ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ذرا کرتے ہیں اس خوبصورت موسم کی جس میں کئی لوگوں کو یاد چیزیں آ جاتی ہیں پرانی. کئی لوگ آپ دیکھیں کہ بارش میں بھی یا تو بہت مسکرا رہے ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, دل باغ و بہار ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کہ بس اندر نہ بیٹھیں, کسی طرح باہر نکل جائیں, کوئی ڈرائیو پہ لے جائے یا خود ڈرائیو پہ کہیں چلے جائیں. لیکن کئی لوگوں کے لیے بڑی پینفل پاس بھی واپس آ جاتا ہے. ان کی بھی بات کریں گے, ان کی بھی دل جوئی کریں گے جو بارش کے دنوں میں بھی سیڈ گانے سنتے ہیں. اور بہت سارے سیڈ گانوں میں موضوع ہی بارش ہوتا ہے کہ یہ دل میری دل کی طرح دیکھو بادل برس رہے ٹائپ. تو آپ کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ کیا اس بارش نے آپ کو خوش کیا, آپ کو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئی, یا آپ کو کوئی پرانی باتیں یاد آ گئی؟ آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. کالج کا میں نے ذکر کیا تھا. کالج کے زمانے کی جو بارش ہوتی تھی وہ زبردست ترین, حسین ترین بارش ہوتی ہے کیونکہ اس میں پڑھائی کا بالکل دل نہیں چاہتا. اور مجھے لگتا ہے ٹیچرز بھی آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی, بنک ونک کر لو, باہر نکل کے آپ چائے سموسے کھائیں, کینٹین کی ٹیبل پہ جا کے آپ گانے گائیں. یہ بڑا کامن سین ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے. یہاں تک کہ جو کالج گوئنگ بوائز ہوتے تھے, کل بھی میں دیکھ رہی تھی اپنی بائکس نکالی ہوئی بارش میں بھیگتے ہوئے یونیفارمز میں جا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے سائٹ ٹو سیور. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے خیالوں میں بھیج دیا ہے, لیکن آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ کل جب کراچی میں اللہ اللہ کر کے بارش ہوئی تو کراچی والوں نے کیسے انجوائے کیا. لیٹس ٹیک اے لک. رین سٹارٹ ہوئی ہے اور ہم نے اپنی موجیں شروع کر دی ہے. آج کا ویدر بڑا بیسٹ ہے. اس موسم میں تو انجوائے بھی ہوتا ہے, انجوائے ہے بس. کراچی کا موسم ایسے ہی بہت دنوں سے ابر آلود تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی. آج شکر ہے بارش ہوئی. بجلی بعد میں سمجھ لو بارش ہو لائٹ پہلے چلی جاتی ہے. بجلی نہیں ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, گھروں کے اندر پریشانی ہوتی ہے. انجوائے کرنا ہے ہمیں. ادھر بارش ہو رہی ہے, موسم اچھا ہو رہا ہے. بارش کا بھی مزہ لیا, سمندر کا بھی مزہ لیا, اور بہت اچھا موسم ہے الحمدللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے, بارش ہو رہی ہے تو بارش میں ہم انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بھی ایک جینڈر بائس آپ دیکھیں, جتنے لوگ بارش کو انجوائے کر رہے ہیں یہ مرد حضرات ہیں. خواتین بیچاری اپنی چھت پہ یا گیلری پہ بھی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کسی کو کہنا پڑتا ہے پلیز بھائی جان آپ ذرا سائڈ پہ ہو رہے ہیں, تھوڑی سی 2 بوندیں ہمیں بھی دیکھنے دیں, یا پھر بیچاری وائپر ماری ہوتی ہے. کل میں ایگزیکٹلی یہی بات کہی جب اپنی ٹیم سے ڈسکس کر رہی تھی. جی بہت ہنس رہی ہے, میں اپنی گیسٹ کو انٹروڈیوس کر دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے شیف وردہ, ایک نئے انداز میں اپنی یادیں ساری ریوزٹ کرتے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا یاد دلا دیا میں نے؟ بس میں یوں بیٹھی تھی, میں کیا یاد دلا دیا آپ نے. وہ کالج کی کینٹین, ایک یونیورسٹی کی کینٹین. اچھا بتا, ایک وہ وقت تھا بارش ہوتی تھی تو ہمارا دل کرتا تھا باہر جائیں. آئی ایم شیور آپ کے ساتھ تو بارش ہوتی تو گھر والے آپ کو کچن میں بھیج دیتے تھے, پکوڑے تو بناتے. دیکھیں شادی سے پہلے نہیں کہ اس وقت یہ والا سین نہیں تھا کہ اس وقت آپ خود ایک زون میں ہوتے ہیں نا, کہ نو ورکنگ زون میں ہوتے ہیں, اس وقت آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہاں یہ تھا کہ ہم سب لے کے ضرور آتے تھے ایک ساتھ چیزیں کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں نہانے. میں تو اسٹل کل بھی میں نہائی ہوں بارش میں. میں بھی کل بارش میں بہت بھیگی, یہاں سے بس نکلی ہوں اور جس سے میں نے گھر پہ میں انٹر ہوئی ہوں اینڈ اٹ واز ریننگ. میں نے کہا بس جی سب سائڈ پہ ہو جائیں, آج بارش انجوائے ہوگی. اٹ از اے ویری کراچی ٹریٹ ٹو ڈو. آئی ایم شیور کہ باہر بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن ہم تو ملک سے باہر بھی جاتے ہیں تو ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں بارش کو لے کے. لندن میں اگر آپ کسی کو کہے وہ بارش ہو رہی ہے, ہر گھنٹے ہوتی ہے, کیا اتنی ایکسائٹمنٹ کی کیا بات ہے. بٹ یس آف کورس بارش از اے بگ فیسٹیول اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں. اگر ہم اپنی ثقافت کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑے گانے بنے جی اس کے اوپر, بیکاز آف کورس اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہماری جو کاشت ہوتی تھی وہ ڈپینڈ کرتی تھی بارشوں کے اوپر, تو بڑے لوگ انتظار کرتے تھے. اور آج بھی جب کراچی والوں کے لیے بارش نہیں ہوتی تو وہ لگان کی تصویر لگا کے میم بنا دیتے ہیں کہ ہم اسی طرح انتظار کر رہے ہیں بارش کا, اور بارش ہے کہ ہو نہیں دے رہی, بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ویسے جب بہت اچھا موسم ہو وردہ اور بالکل امکان ہو کہ بارش ہوگی لیکن نہیں ہوتی تو اس وقت کیسا فیل کرتی ہو؟ دل دکھتا ہے نا, دل بہت دکھتا ہے, خون کے آنسو ہوتا ہے, کہتا ہے یار برس جائے یہاں بھی بوندیں, یار کیا گناہ کیا ہم نے. ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے, چیٹنگ ہے یہ, ہے نا. نہیں, اور آپ اسپیشلی کہ آپ نیوز دیکھ رہے ہو, اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے, لاہور میں بارش ہو رہی ہے, باقی ہر جگہ بارش ہو رہی ہے, کراچی میں ہی بارش نہیں ہو کے دے رہی, تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار ایسا کیا. اچھا تو دوست مذاق اڑاتے ہیں, کبھی آپ اسلام آباد چلے جائیں یا لاہور چلے جائیں, وہاں بارش ہو جائے تو کہتے ہیں وہ کراچی والے آئے, کراچی والوں کو دکھاؤ بارش کیسی ہوتی ہے. That's true. یعنی کہ یہ اب تو مذاق بننے لگ گیا یار ہمارا. اور جب ہوتی ہے تو پھر ایسے ابھی برستا ہے کہ ہم سب کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. اب بس ہو گئی. ویسے اس دفعہ تھوڑے ڈر بھی رہے تھے, اس دفعہ ہم سوچ رہے تھے کہ بارش تو ہو لیکن ویسی والی بارش, لیکن وہ رحمت کی طرح برسے. لیکن بتا مجھے بتاؤ کالج لائف جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, کالج لائف کی بارش نہیں ہے وہ, آپ ایک کالج لائف ایک یونیورسٹی کی لائف میں جو بارش ہوتی ہے نا وہ آپ لائف میں کبھی نہیں بھول سکتے, کیونکہ اس میں ایک الگ ہی آپ کا ایک فن ہوتا ہے, آپ کو بہت زیادہ لائک آپ کو ایک پتہ
क्लास आज होनी नहीं है, आज कोई जो भी लेक्चर है पता ही नहीं है, टीचर्स भी जो है वो आपको फ्रीडम दे देते हैं। टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं भाई। हाँ भाई, वो मेरी तो एक अकाउंट्स की टीचर थी इन इंटरमीडिएट, एंड शी वुड नॉट, चाहे जितना भी अच्छा मौसम हो, हम लिटरली हमें आवाजें आ रही होती थी कि दूसरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं, कोई चिप्स खा रहा है, कोई गाने बज रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरा डेबिट क्रेडिट उसी वक्त बैलेंस शीट हमसे करानी होती थी, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। इतनी सख्ती होना चाहिए। देखिए उसी का आज लोगों को समझ ये मिला कि अब ऑनलाइन क्लास होती है, और वो भी नहीं हो सकती क्योंकि बिजली चली जाती है। अच्छा, आपका ध्यान भी नहीं होता उस टाइम पे, आपका पूरा ध्यान बारिश में लगा होता है, फलानी जगह पे बंदा जलेबी खा रहा है, खड़े हो गया है, वो देखो बच्चे गाने गा रहे हैं, और टीचर यहाँ पे जो भी पढ़ा रही है आपको हाँ 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 हो रहा होता है। लेकिन चेंज कैसे आता है इंसान में? पहले जब बारिश की 2 बूंदें टपके तो हमसे अंदर बैठा नहीं जा रहा, हमारा दिल चाह रहा है हम बाहर निकलें, चाहे हमारी क्लासरूम हो या कहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, पीपल डोंट हैव द सेम रिएक्शन टू बारिश। ट्रू, दैट्स बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगर जैसे अगर आप पहले आपको पता होता है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जो है फ्री हैं और आपको ही हर चीज नहीं देखनी है, तो आप बारिश की 2 बूंदें टपकी, आप छत पे चले गए, आप बालकनी में चले गए, आप जहां भी आप हैं, आप अपने गार्डन में चले गए, आप जाके नहा रहे हैं। लेकिन जब यही चीज अगर हम थोड़ा सा कुछ साल बाद देखें, जहां आपके बच्चे हैं, जहां आपका घर है, जो आपको पता है कि आपने ही संभालना है, आपने खाना चढ़ाया हुआ है चूल्हे पे, या फिर आप घर का कोई काम कर रही हैं, तो एट दैट टाइम आप सारे रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज के, कि आपने उनकी चीजें भी चेक करनी है कि अगर फ्लक्चुएशन हो रही है सब चीजें बंद भी करनी है। अगर बच्चे नहा के आए हैं तो आपने उनको भी देखना है, कोई स्लिप ना हो जाए, कोई गिर ना जाए, कहीं पानी ना खड़ा हो जाए, कोई स्लिपिंग ना हो जाए, कोई खुदा ना खासा इलेक्ट्रिक ना हो जाए, कोई इस तरह का मसला हो। और जो घर वालों की फरमाइशें हैं वो फरमाइशें हैं, एग्जैक्टली। मतलब उसी पे आ रही थी कि फिर जब है कि आपका खुद दिल चाह रहा होता है कि आप उस एज तक पहुंच चुके होते हैं कि आप खुद किचन में चले जाते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई सब फरमाइशें करें, यार एक कप चाय बना दो, या फिर आपका भी दिल चाहता है, जैसे कि मेरा ये बहुत मशहूर है घर में, जहाँ 2 बूंदें टपकी, मैंने आलू के समोसे मंगवाने हैं। क्या बात है। और चाय बनानी है। आज हमने ना बस इंतजार कर रहे हैं हम बेकरी के खुलने का और समोसे फ्राई होने का। इस वक्त बाकी चीजें मिल जाती है, समोसे नहीं मिलते, बट वील गेट समोसास। ये कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अकरम ज़ैकी है अहमदाबाद से। क्या हाल चाल है सर आपके? बारिश का जिक्र हो रहा है। मैं आपको कराची की बारिश की याद बताता हूँ। जी जी। ये भुट्टो साहब का दौर था 72 या 73 की बात कराता हूँ। जी जी जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए बताइए। अच्छा सुने ना, उस वक्त मदीर की जो नदी थी ये कुरंगी से अक्सर कानूनी तजुर्बाबाद से बहती। हाँ जी। रात का टाइम था, भाई खाना खा के आए तो हम बड़े खुश थे कि हमारी गली नंबर 5 में पानी नहीं आया। ओहो। जैसे हम वापस आए जी, तो पता चला कि हमारे घर में भी पानी दाखिल हो रहा, हम बड़ी तेजी से छत पे चले गए। आप यकीन करें, मेरा भाई तो गटर में गिर गया, बड़ी मुश्किल से बचाया। अच्छा, सारी रात बारिश थी, बिस्तरे थी हमारे पास नहीं थे, छड़े थे हम लोग, तो मैं तो सो गया बारिश में। मैंने ऊपर एक चादर रख के ऐसा तस्वर किया कि बारिश नहीं है। सुबह जब उठा तो मेरा सारा बदन नीला पड़ा हुआ, भाई के दांतों की आवाज जो पड़ोसी थे सारी रात ऐसे, आई थिंक दांतों की आवाज, मैं सो गया और सुबह उठा तो जिस साइड पे सो गया वो सारी नीली पड़ी हुई। अच्छा, फिर पानी में सुबह जब देखा तो भैंसें ही भैंसें थी, सारी भैंसें बह के आ गई। अब आपने तो मंजर ही बदल दिया। कहाँ हम समोसों का जिक्र कर रहे थे, आपको पानी में डूब के कुछ टाइटैनिक नुमा जिसमें भैंसें भी आपको नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और अपनी ये याद हमसे शेयर करने का। ऐसे वाकई पुराने वक्तों में हम देखते हैं कि जब भी कराची में बारिश का जिक्र होता था तो जो सबर्बन एरिया से, खासतौर पर जो मलीर का काश्त वाला इलाका था या मलीर में जो नदी का इलाका है, उसमें तूफानी आ जाती थी, वो बह जाता था और वहां पे लोगों के घरों में पानी आता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबके लिए ये बाइसे रहमत ही रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बारिश एक रोमांटिक वक्त है, और खास तौर पे जो आप कराची की रिपोर्ट्स में देखते हैं, कराची के मंचले पहुंच गए सी व्यू पे। तो ये मंचले से कब आप एक सीरियस सोबर इंसान बनते हैं और ये क्या सफर होता है, जरा इस पे बात कर लेते हैं। व्हाट अबाउट दैट चेंज इन मैनी? ये नहीं देखा मंचले बाइक्स पे होता है, होती बड़ी बड़ी एज के मंचले होते हैं, मंचले होते हैं, पहुंचे हुए अंकल चले होते हैं। मंचलियां हुई नजर नहीं आती मुझे, बिल्कुल भी नहीं। साइलेंसर निकाल के या पता नहीं उसमें पानी चला जाता है। एक और चीज जो बड़ी कॉमन है कराची की बारिश में, आप हर एक के साइलेंसर पे एक खूबसूरत सा पाइप देखेंगे। हाँ, देखेंगे क्योंकि पानी अब भरने वाला है तो सड़कों के लिए हम पहले तैयारी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। बट डू यू थिंक कि मेन रिमेन
रोमांटिक थ्रू आउट देयर लाइफ? वो जो पहले आपके मम्मी के जमाने में जो आपके हस्बैंड का रूप था, वो आज भी आप देखती हैं या वो गुड बाय हो गया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सुने, अब बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्या होता नहीं है, अब तो उल्टा हो गया है। पहले क्या होता था मतलब? देखिए, पहले 2 बूंदें टपकने की देर होती थी, गाड़ी घर के बाहर होती थी विद सम बुकेज, या फिर हम आइसक्रीम के लिए चले जाते थे, कुछ लाइक कुछ न कुछ एक्टिविटी होती थी, लाइक वी यूज्ड टू गो फॉर अ ड्राइव, कुछ नहीं तो चलो लॉन्ग ड्राइव पे ही चलते हैं ना। और अब तो हम बोल के यार कितनी बारिश हो रही है, हाँ तो क्या होगा, चले मैं नहीं चलते हैं नहीं, बारिश हो रही है, प्लीज देख लो नीचे वाइपर लगाया या नहीं। गुफ्तगू का लेवल भी यही हो गया लिटरली। लाइक कल मैंने कहा यार तो ये अच्छा मौसम हो रहा है ना, जिंदगी की प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट होते हैं ना, वो एक कपल के रोमांस को खुदाफिज करते हैं। हम बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम ये आखिर में तंग आ गए। मैंने कहा सही ठीक, कुछ नहीं कर रही, मैं समोसे मंगवा रही हूँ। तो ये रोमांस से समोसे तक का सफर वर्दा कितने अरसे में आपने? मेरी शादी को तो खैर 11 साल हो गए। अच्छा, एक्सेप्ट कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 11 साल के बाद तो देयर विल बी नो रोमांस। नहीं, ऐसा नहीं, किसने कहा ऐसा नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अगर मर्द हजरात नहीं करे तो फिर आप खुद से हो जाए, लेकिन मेरा है लाइक व्हेन आई यूज्ड टू बी इन दुबई या फिर यहाँ पे, तो जहाँ 2 बारिशें हुई मैंने गाड़ी निकाली और मैं लेकिन दुबई की बारिश में और हमारी बारिश में बहुत फर्क है ना, वो तो करते हैं। नहीं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे कितनी ही तेज बारिश क्यों ना हो, आप इजीली यू कैन ड्राइव, आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे गाड़ी निकालते हुए भी ना, अगर मैं खुद से भी जाना चाहूँ कि नहीं मैं जा रही हूँ, आपको आना तो साथ आ जाए, तो फिर मुझे पता है कि जब ये थोड़ी धमकी लगती है ना, भाई मैं जा रही हूँ, आपको आना है तो आते, बच्चे और मैं जा रहे हैं, पता है गाड़ी में आके बैठना ही है। सोचती हूँ कि जो लोग इस वक्त भी बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे, यंग कपल्स हैं, चाहे आपकी मंगनी हुई भी है या आप डेट पे हैं और आप कोई चाय वाय पी रहे हैं, तो उस वक्त जो रेस्टोरेंट वाले होते होंगे उनको कितनी खुशी होती होगी ना कि आज बारिश हो रही है तो आज हम देखेंगे कि बहुत सारे ग्राहक आएंगे, उनको पता है कि उनकी सेल ज्यादा होगी आज। हाँ, ये लेकिन सेल पता नहीं ज्यादा होती है नहीं है, 1 चाय के कप पे या 3 चाय के कप पे खाना तो कोई ऑर्डर ही नहीं करता। कॉफी की चल रही होती है या फिर आइसक्रीम चल रही होती है, ये तो पूछना पड़ेगा किसी होटल वाले से कितनी सेल पे आपके जो। आपको क्या लगता है आपके इर्द गिर्द? इस दफा तो आपने कहा कि कोई वाइपर और समोसे पे बस आपने एक दफा किया। हाँ, अभी तो फिलहाल एक ही दफा ही बारिश हुई है, अभी हम वेट करते हैं, आगे देखेंगे, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो बारिश को बहुत एंजॉय करती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ ही मिलकर बहुत एंजॉय करती हूँ। कभी ऐसा हुआ है वर्दा कि हर एक की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि बारिश बिकेम सैड फॉर यू? यानी कई दफा कहते हैं ना कि यार आज वो खुशी वाली बारिश नहीं है, आज उदासी वाली बारिश है, कभी ऐसा महसूस किया? फॉर मी नो, बिकॉज मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदी हूँ। मैं अगर कुछ लाइफ में होता भी है या कुछ ऐसा है तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो हुआ आपके लिए अच्छा ही हुआ होगा, तो ये टेक इट एज अ न्यू स्टार्ट, द न्यू बिगनिंग। अगर बारिश में जो चीज पुरानी है उसको सब भुला दो अच्छा दिल को जलाती रहे। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जो हम बचपन में इतने ज्यादा लाउबाली होते हैं, जैसे अभी तुम बात कर रही थी कि कॉलेज में अगर बारिश हो जाए तो पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा। फिर तो हम छतरी भी, वही वाली आपकी बात, हम छतरी भी नहीं लेते थे, भीगते हुए हम तो भैया खाने हैं, चाट में एक थ्रिल होती थी। लेकिन अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में हो, अभी तो कल तो खैर तुम्हारा काम नहीं था, लेकिन अगर शूट हो और शूट लाइंड अप हो, काम करने का दिल चाह रहा होता है? जिसे नहीं चाह रहा होता, बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा होता। उसका दिल चाहता है कि आप कहीं जो है वो बस चले जाएं, तो आप सी साइड पे चले जाएं या फिर आप कुछ दफे टेरेस पे ही खड़े होकर एंजॉय कर रहे हो और बारिश हो रही हो और गर्मा गर्म जलेबी हो एक हाथ में, एक हाथ में चाय का कप। अब देखिए, अब वर्दा जुल्म करने पे आ गई है, कभी समोसों का जिक्र कर रही हैं, कभी जलेबी का जिक्र कर रही हैं। एक कॉलर आ गए, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। लेकिन वर्दा, अब तुमने क्योंकि जलेबी और समोसों का जिक्र छेड़ ही दिया है तो हम जरूर हम कोई प्लान बना रहे हैं, एक दिन लेट ही सही, वैसे तो आज भी पेशन गोई है कि बारिश होगी, बस दुआ यही है ये सबके लिए रहमत का पैगाम लेके आए, मुश्किलात का बायस ना बने। लेकिन जरा चलते हैं, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो चीज याद आती है ना रोमांस और घर वालों को छोड़कर, इज ऑल्सो योर फ्रेंड्स। अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ को याद कर रहे हैं तो आपको याद आएगा यार वो जो कॉलेज के दोस्त थे जो आपके साथ मिलकर बारिश को एंजॉय करते थे, वो कहाँ और उनमें से पता नहीं कितने लोग अभी आपके इर्द गिर्द होंगे, करीब होंगे या नहीं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहते हैं ना धीरे धीरे बादल धीरे धीरे मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर न मचा। ये कौन सा बुलबुल है जो इस मौसम में सो रहा है? अनरोमांटिक बुलबुल को तो छोड़ ही देना चाहिए। अब मैं आप समझ जाएंगे, वो पहले बुलबुल थी, अब वो बुलबुल नहीं रही है। उसका सो जाना ही बेहतर है। हो गई
बहरहाल वर्दा को भी सलाम हो। देखिए बात ये कि बहुत सारी यादें वापस आए। मेरा तो ये था कि जब मैं इंटर में था तो चुपके से गाड़ी निकालता था, सारे लड़कों को भरता था और हम पराठे भरते हुए पूरे नॉर्थ में घूमते थे और फिर पानी भी उड़ाते थे और क्या कहते हैं समोसे भी खाते थे, सारी चीजें करते थे। लेकिन क्या कहते हैं अब ये कि हमारे यहाँ अब ये प्रॉब्लम होगी कि अब जो इंजॉयमेंट हम रोडों पे उस तरह कर नहीं सकते, क्योंकि वो रोडों की हालतें और जिस तरह तबाही मच गई है ना, वो कर नहीं पाते। लेकिन एब्सोल्युटली याया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी धर्म भरम है, दूसरा जिम्मेदारियां भी हैं। अभी भी जो एंजॉय करने वाले हैं वो हर हालत में एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच वर्दा फॉर बीइंग हियर एंड फॉर रीलिविंग एंड रिकाउंटिंग अ लॉट ऑफ योर मेमोरीज एज वेल। इसी के साथ जी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बल्कि प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है। बट थैंक यू सो मच जितने लोगों ने अपनी मेमोरीज को रिकॉल किया एंड मेक श्योर दैट यू एंजॉय द वेदर टुडे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा